All right. I'm going to chat to both vice captains. So, Shadab, can you come on over here? And also, Moeen Ali. Moeen. We'll wait for them to settle down just a second. All right, ready? And beautifully done. Crazy journey to get here. How is the team feeling? How have you both prepared after the semi-finals? We obviously flew here yesterday and today's training day, so we haven't really done a lot, but we've played against them quite a lot recently, so we're feeling pretty good about the game tomorrow. Do you think you can win tomorrow? Yeah, hopefully, because we played here well, so we try to give our 100% doesn't matter the result, and we try to give our 100%. There you go. I don't know if they heard that or not, but there you go. All the chat is about both teams winning. It's about how you're going to win, all right? They're very good with the new ball. Where do you think England can win the game tomorrow? How? I think in all three facets, if we do them well, like we did last game, we have a good batting lineup, we bowl well as well, and we've been fielding well, so just play our best cricket and we'll do well. Such a big, long, deep batting lineup. You're just going to play the same game that you said you played them a couple of times already before. What's the actual mindset going into the game? Do you think you can beat them? Yeah, of course. I mean, I think we just adapt to conditions well and better straight away, and we get in early, and I think we'll be fine. We're just going to, like I say, play our best cricket and we'll be good. Now, it's a pretty simple question. It's based on the fans. How does it feel going out there in Australia? We're a long way from home, but the Australian fans are mad, aren't they? They're crazy. I feel like we are at home because where we are going, they support us. So thank you so much for their support, because we didn't start well, but still they trust us, they support us, and that's we know that they're behind us, so we try to give them back a lot. Now, I've done a few games before, Australia, India, and the crowd's been mad. I'm glad there's no Indians here today, which is great. Speaking of India, Kohli has had an amazing tournament. I want your guys' opinion, and it might be from your team, but who do you think has been the player of the tournament for your team, or perhaps another team? Who's the best player? We've had some really good performances. I think Sam Curran's been awesome this year, and he's been really good this tournament. So yeah, hoping for more. But the guys have contributed really well throughout the whole tournament so far. So hoping whoever plays well on the day will win the game for us. Who's been your favourite player? A teammate or someone else that you've watched? Who do you think's the player of the tournament? I think we have so many players done well. Shaheen done well. Babar is in a form now. So as a team we've done well, I think. So hopefully Shaheen or anyone will. But more importantly, we have to win the World Cup. Now, last question. You've done a lot of travel all around Australia. Who's the worst person to room with? Who's the worst roommate? Give us some goss. Adil Rashid. There you go. How about for Pakistan? Who's the worst? I think Haris Road. Stitch up. All right. One more time. Who do you think's going to win tomorrow? This is the trophy. If I can, this is the edge of stage. If I can get both teams sort of huddled around it, looking back this way, and we're going to get a photo with the crowd behind us. All right, is that okay? Come on over, guys. Stand here and look that way. There you go. Make some noise, everybody! All righty. I'll squeeze through here somehow. All I need now is we've got a cameraman up on stage. Beautiful. Oh, it's super dark. This might work, it might not work. I don't know if we can get us all. We might need to bunch right up, guys. Bunch right up. There you go. Don't touch the trophy. It's bad luck. It's bad luck. Sunny's on, sunny's off. You flew in yesterday. Do whatever you want to do. That's all good. All right, we've practiced this. The crowd in the background. 7.5 out of 10. Make some noise. 8 out of 10. 9 out of 10. 20 out of 10. Who's gonna win? Thank you very much to both teams. Good luck tomorrow. Good luck recovering. Well done to whoever's gonna win.
Did you enjoy that? Was that good? You can stay all day. There you go. Beautiful. I expect to see lots of photos of backs of heads on Instagram and Facebook a little bit later on. I'll stand over here. One more time. Who's going to win this one? You guys are fantastic. I wish both teams the best of luck. In the meantime, head on over to the fan zone. Get yourself something to eat. You've been standing here for a good hour. In particular, go to Kishwa's Kitchen. We've got an ex-Master Chef contestant there, and also Mabu Mabu. Go and support all the guys over there. There's lots of things to see and do. Enjoy the rest of the weekend. Good luck to your team. Have a great day. Well done, everybody. See you later. ऑन कर ले ऑन कर ले वो वाला लगा लो आजा आइए जी मतलब यहाँ पे ये है कि पीछे जाओ नीचे कर दो तो भाई आपने अभी देखा फैन जोन का इवेंट पाकिस्तान और इंग्लैंड बाहर कर लो तो पाकिस्तान और इंग्लैंड का आपने इवेंट देखा वहाँ पर मोइन अली वाइस कैप्टन और शादाब खान वाइस कैप्टन दोनों ने बात भी करी फैन जोन के लिए फोटोज भी खींची देखिए कितने सारे लोग आए हुए हैं यहाँ पे सारे पाकिस्तान के सपोर्टर मोस्टली थोड़े से इंग्लिश सपोर्टर्स भी हैं बट रोहित जी आप इधर आए ना और ज़रा पीछे चलिए आप पकड़िए बोलिए आप बोलते रहिए तो भाई एक फैन जोन था हर वर्ल्ड कप से पहले होता है आपको 2018 की टेस्ट सीरीज याद हो तो विराट कोहली आए हुए थे यहाँ पर ऐसे ही स्टेज सजा था लेकिन यहाँ पर आए हुए थे शादाब खान और मोइन अली ऑब्वियसली विराट कोहली को लेकर के भी सवाल पूछा गया क्योंकि मैन ऑफ द टूर्नामेंट के एक मजबूत दावेदार हैं जवाब तो किसी ने नहीं दिया क्योंकि मोइन अली ने ऑब्वियसली सैम करन के लिए बोला उनकी टीम की तरफ से हाईएस्ट विकेट टेकर है और शादाब ने खैर उन्होंने बाबर का नाम भी लिया जो मतलब कंसिस्टेंट तो है ही नहीं शाहीन के साथ साथ उन्होंने बाबर के लिए भी बोला लेकिन हाँ शाहीन अफरीदी को लेकर के उन्होंने बात कही इसके अलावा दोनों से जो है मैच के बारे में पूछा गया और ज़्यादातर जो चीज़ें निकल कर आई वो यही कि दोनों टीमें अपने अपने जीतने पर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है तो वो चीज़ आप बताओगे कैसे चल रहा है आइए जी आइए चलिए बात तो ये था कि आज गए अभी भी गए हाँ ये हमारे थोड़े पाकिस्तानी दोस्त हैं आए हुए हैं और जैसे ही पहुंचे हैं तो चले गए यहाँ पे क्या लग रहा है भाई फाइनल का आपको इंशाल्लाह पाकिस्तान विन करेगा जीतने वाले हैं चैलेंज आप अच्छी तरह करेंगे कौन लगता है आपको मैन ऑफ द मैच बनेगा फाइनल के अंदर मेरे को लग रहा है रिजवान वाओ रिजवान आल्सो yeah he's playing so good पिछले सेमीफाइनल में मैन ऑफ द मैच थे हालांकि मेरा मैन ऑफ द मैच शाहीन शाह अफरीदी थे now I'm gonna be like Rizwan okay and wicket taker would be Shaheen Shaheen so he's gonna be the wicket taker Haris Shaheen Shadab you know you've got a good bowling attack it's a depth bowling attack to be honest and I'm sure they're gonna win and they're gonna make through today but right. I feel sorry for the India they couldn't make through yeah but so what to do yeah. may the best team win but no Kudrat ka आज तो हो गया कुदरत का निजाम आज तो हो गया कुदरत का निजाम चलिए थैंक यू ब्रदर आएंगे इंडिया को धोएंगे फिर चलिए थैंक यू तो ये भी इंडिया को धोने की बात कर रहे हैं हालांकि खुद धुल गए थे लेकिन मैच कांटे की टक्कर हुआ था बट अब इंडिया ऑब्वियसली बाहर निकल गया
तो क्या ही कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे भाई, ये नज़ारे देखने के लिए यही कुदरत का निज़ाम हो रहा है। नहीं नहीं, यहाँ से आ जाएगा, जूम हो जाएगा यहाँ से। आप इधर आए करने के लिए, आप आइए, कोई बात नहीं, आ जाएंगे वो। तो जैसा आपको बता ही रहे हैं यार, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, उसके बारे में भी सोच अलग से ही बात करेंगे उसके बारे में। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में कि क्या कुछ हुआ, बाबर की तरफ से क्या कहा गया, कुदरत के निज़ाम पे बाकायदा उनसे सवाल किया गया। जो कुदरत का निज़ाम बहुत ज़्यादा एक कीवर्ड तरह का बना हुआ है इस वक्त और वायरल शब्द है। लेकिन कुल मिलाकर के पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीम तैयार है। आज तो मौसम साफ है, यहाँ बारिश नहीं हुई है आज। कल रात को जब हम यहाँ पर लैंड हुए थे 12 बजे के करीब रात को यहाँ के टाइम के हिसाब से, तो बारिश हुई थी हल्की फुल्की। कल 80% है बारिश के इम्कानात। तो वेदर रिपोर्ट भी आपको यहाँ से दे दी जाएगी। लेकिन कल के दिन बहुत ज़्यादा मुश्किल है। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी इस तरह के सवालों की बात होती रही लगातार कि मैच हो भी पाएगा या नहीं। लेकिन फिलहाल अभी तो वेदर साफ है। लेकिन शान भाई, आपको क्या लग रहा है, पाकिस्तान या लग रहा है अभी देखकर? जब ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबर आजम को देखा तो पहले मैंने सोचा यार यहाँ पे रोहित शर्मा काश बैठे होते तो कुछ मजा आता। तो एकदम से दिल, पहले भी वो तो था ही, खैर मुझे वो जॉस बटलर को देख सिंक इन हुआ, फिर दोनों को देखकर यही लगा कि यार कैसे मिस हो गया। और फिर यहाँ पे मैं, यकीन मानिए आप, ये अगर इंडिया पाकिस्तान गेम होता, यहाँ तक इंडियंस होते, जहाँ पे हम खड़े हुए हैं वहाँ पे इवेंट हो रहा है ना पीछे, यहाँ तक इंडियंस होते और पूरा खचाखच भरा होता। बट ठीक है, हमारी टीम ने जब अच्छी परफॉर्मेंस, फाइट तो कर लेते। खैर मुझे ये लग रहा है कि तगड़ा मैच होगा, बट पाकिस्तान का पूरा चांस है बिकॉज उनकी बॉलिंग अटैक बहुत अच्छी है। क्या जॉस बटलर फिर से वैसी पारी खेल सकते हैं? क्या एलेक्स हेल्स फिर से वैसी पारी खेल सकते हैं? आई थिंक जॉस बटलर पे बहुत डिपेंड करेगा। अगर जल्दी आउट हो गए शाहीन ने या हारिस ने या नसीम ने, शादाब ने, जिसने भी उनको जल्दी आउट कर दिया, वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर इंग्लैंड के ऊपर आ जाएगा। आज जैसे बाबर आजम ने बोला कि भैया बड़ा ग्राउंड है, तो खैर बहुत सारी तफसील से आपको बात बताएंगे, पूरा अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो करते हैं। लेकिन अभी शायद थोड़े से फैंस अगर मिलेंगे तो उनसे बात कर लेंगे। रोहित, माहौल बहुत अमेजिंग है यार, माहौल हमें कुछ अब महसूस ही नहीं हो रहा है। और ये जैसे जैसे आप मैच के क्लोज जाते जा रहे हो, ये चीज़ आपको और ज़्यादा हिट कर रही है कि इंडिया बाहर हो चुका है। जिस दिन इंडिया बाहर हुआ था ऑब्वियसली उस दिन तो लगा ही था, लेकिन अब आप मेलबर्न आए, आपको लगा यार यहीं तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान होना था, जिसके लिए हम लगातार बात भी कर रहे थे। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान ना होता तो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड होता। लेकिन फिर आज जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देखते हो, दोनों कप्तानों को देखते हो, तब आपको ऑडियो वीडियो ठीक है तो आप बता दीजिए, ऑडियो क्वालिटी अगर सही मिल रही है आपको, ये आवाज़ डिस्टर्ब तो नहीं कर रही है बैकग्राउंड वाली, और वीडियो क्वालिटी आपको सही मिल रही है। तो मैं वही बता रहा था कि जैसे जैसे आप फाइनल के क्लोज जा रहे हो ना, वैसे वैसे आपको रियलिटी हिट कर रही है कि आपकी टीम जो है वो वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है। आपकी और हमारी दोनों की टीमें जो है बाहर हो चुकी है। कुछ ऑब्वियसली घर पहुंच चुके हैं, कुछ खिलाड़ी जैसे रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, आज निकलना था उन्हें, आज सुबह निकल गए होंगे। लेकिन विराट कोहली, जैसा हमने आपको कल भी बताया था, राहुल द्रविड़, मोहम्मद शमी, ये सब लोग कल ही निकल चुके थे। तो अब आप जब यहाँ आए, मेलबर्न आए, और आपको वो 23 तारीख वाली तस्वीरें याद आई कि यहाँ पर क्या माहौल था, तो फिर आपको रियलिटी ने हिट करना शुरू किया है कि भाई आपकी टीम जो है बाहर हो चुकी है। फिर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, आपको और ज़्यादा लगा कि यार यहाँ तो हमारा कोई है ही नहीं, ना रोहित शर्मा ना कोई और। अगर कोच भी आते या कैप्टन आते, ऑब्वियसली आज तो कैप्टन प्रेस कॉन्फ्रेंस ही थी, लेकिन फिर आप ये फैन जोन देखते हैं, यहाँ पर भी आप देखते हैं कि इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान, दोनों की टीमें खड़ी हुई है पूरी, एक दूसरे को वो बातें चल रही हैं कि भाई किस तरीके से आप एक दूसरे के खिलाफ बेहतर। कम ऑन